Assalamualaikum dear students. I hope that you all are doing good at your homes. Take out your Oxford Progressive English books. पेज नंबर 24. आज हम आपकी यूनिट नंबर 1 का टेक्स्ट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कैंडी पेरेहरा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी रीडिंग करेंगे. आप डिफिकल्ट वर्ड्स बोर्ड से नोट डाउन करेंगे. पैराग्राफ नंबर 1. Sri Dalada Maligawa is the temple in Kandy, Sri Lanka, which houses the Dalada or sacred tooth relic of the Buddha himself. For Buddhists all over the world, it is their most precious relic. Relic का क्या मतलब है? Its English meaning is, look at the board, an object from the past often valued for its meaning or importance. So Urdu meaning is कदीम चीज. The sacred tooth relic has been in Sri Lanka since ancient times and housed in Dalada Maligawa or Temple of the Tooth for over 400 years. Paragraph number 2. The Kandy Perehera is a traditional religious celebration of great importance and antiquity. Now what do you mean by antiquity? Its English meaning is a distant past before the 6th century. Nihayat Kadeem. Traditionally, the king was the guardian of this sacred relic, and according to the ancient custom of Rajakarya, he gave land and holy shrines to the people. The gift of land was bound to specific duties. One of these was the dancing, drumming and torch bearing of the Perehera. Another duty was supplying flowers for the daily pujas or religious rites, and other was cultivating paddy fields for the daily offering of rice and the holy shrines. The Great Kandy Perehera is an annual celebration which many pilgrim families travel from the surrounding rural area to see. Nowadays, tourists from all over the world also come to see it. Each summer, the celebrations begins at the full moon at the time prescribed auspicious by astrologers. As auspicious का मतलब क्या है? Suggesting a positive or successful future. Its Urdu meaning is Sazgar, and continues every evening for 11 days. Paragraph number 3. In the Perehera, the blessings of the gods are invoked for rain, fertility and successful crops. As elephants are a cultural symbol of abundance and fertility, they play an essential and visually stunning part. 100 lavishly decorated elephants parade in the ceremonies accompanied by hordes of drummers, dancers and fire bearers. The elephants frequently travel long distances to reach Kandy for the Perehera, walking slowly by night in order to avoid the heat and the traffic. They are decorated outside the Temple of the Tooth. Their mahouts or riders drape the elephants in brilliant coverings sewn in mirrors in rich color, exotic amber, rich vibrant red and bright rich shade of deep blue. Almost every part of the elephant is covered in these decorative drapes until only their eyes are visible. The defeating crack of the whip marks the beginning of the ceremony, and the procession starts. Men in white sarongs wielding whips, the flag bearers and the elaborately dressed elephants with their dazzling mirrored covering glinting in the firelight, the drummers beating a frantic rhythm, horn blowers, dancers decked with their flashing anklets, bracelets and necklaces and brilliant costumes, the fire bearers illuminated by their great torches, the flames soaring many feet into the air, the elephants' three abstracts link trunks and sway to the rhythm of the urgent beating of the drums, unperturbed by the manic movement, fire, intense heat and noise around them. The people regard the elephant as clouds that walk the earth, and so they are essential in attracting the vital rains. When the Kandy Perehera is finally over and the gods at every shrine have been honored, the elephants plod back to their villages for their everyday work. The great Kandy Perehera is all over for another year. यहाँ पर आपकी रीडिंग खत्म होती है. आपने इसको अपने घरों में एटलीस्ट 2 टाइम्स रीड देना है. ओके, पैराग्राफ नंबर 3 पे देखें. जो 5th लाइन में फर्स्ट वर्ड है, पैराग्राफ नंबर 3 में 5th लाइन पे जो फर्स्ट वर्ड है hordes. What do you mean by hordes? A large group of people. Its Urdu meaning is hajum.
नाउ मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ. पैराग्राफ नंबर 1, श्री दलादा मलिगावा इज अ टेम्पल इन कैंडी, श्रीलंका. कैंडी जो है वो श्रीलंका का एक बड़ा सिटी है. इट इज द लार्ज सिटी ऑफ श्रीलंका. कैंडी जिसका नाम क्या है, कैंडी. इट इज अ लार्ज सिटी ऑफ श्रीलंका. अब जो इसमें एक टेम्पल की बात हो रही है, उस टेम्पल का क्या नाम है, श्री दलादा मलिगावा. Sri Dalada Maligawa is the name of the temple which is situated in Kandy. Kandy कहाँ पर है, श्रीलंका में. समझ आ गई आपको. यहाँ एक टेम्पल की बात हो रही है जिसका नाम है श्री दलादा मलिगावा, जो कि कहाँ पर मौजूद है, कैंडी में. और कैंडी कहाँ पे मौजूद है, श्रीलंका में. कैंडी इज द लार्ज सिटी ऑफ श्रीलंका. ओके, which houses the Dalada or sacred tooth relic of the Buddha himself. और इसमें क्या मौजूद है, इसमें वहाँ के जो रिलीजन को मानने वाले हैं, जो बुद्धिज्म रिलीजन के लोग हैं, जो बुद्धा को मानने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि इस टेम्पल में क्या है, एक टूथ रेलिक है. रेलिक क्या आपके पास होता है कि कोई कदीम चीज, तो यहाँ एक टूथ की बात हो रही है, तो यहाँ टूथ रेलिक ऑफ द बुद्धा की बात हो रही है. तो इसमें आपको ये बोल रहे हैं कि यहाँ इस टेम्पल में बुद्धा का एक टूथ पड़ा हुआ है, जिसको ये लोग सेक्रेड बोलते हैं, पाक बोलते हैं. पाक टूथ पड़ा हुआ है, एक पाक दांत पड़ा हुआ है, जो कि बहुत कदीम जमाने का. सेक्रेड टूथ रेलिक, पाक कदीम जमाने का दांत. किसका, ऑफ द बुद्धा. बुद्धा का एक कदीम जमाने का पाक दांत पड़ा हुआ है इस टेम्पल में. ओके, फॉर बुद्धिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज देयर मोस्ट प्रीशियस रेलिक. जैसे हमारा रिलीजन इस्लाम है और हम मुसलमान हैं, इनका रिलीजन क्या है, बुद्धिज्म, और ये है क्या, बुद्धिस्ट. तो कहते हैं कि सारे जो बुद्धिस्ट हैं, सारी दुनिया के जो बुद्धिस्ट हैं, इनके लिए ये एक बहुत ज़्यादा कीमती, बहुत ज़्यादा एक प्रीशियस रेलिक है. बहुत ज़्यादा प्रीशियस रेलिक मतलब बहुत ज़्यादा इनके लिए ख़ास कदीम चीज़ है, इनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है ये. The sacred tooth relic has been in Sri Lanka since ancient times. अब जो इस sacred tooth relic है, जो कि ये दांत है, ये श्रीलंका में काफ़ी टाइम से है, एंशियंट टाइम से है, कदीम ज़माने से है, बहुत पहले का ज़माना. ओके, उससे ये टूथ जो है इस टेम्पल में पड़ा हुआ है. जो ये टेम्पल है इसका क्या नाम है, श्री दलादा मलिगावा. ओके, और टेम्पल ऑफ द टूथ, इसको और भी क्या कहा जाता है, इसका सेकंड नेम क्या है, श्री दलादा मलिगावा का सेकंड नेम जो है वो है टेम्पल ऑफ द टूथ. मतलब जो टूथ है उसका एक टेम्पल, इस दांत का टेम्पल. फॉर ओवर 400 ईयर्स, 400 साल पहले का ये इधर पड़ा हुआ है. ग्राफ नंबर 2, The Kendi Perehra is the traditional religious celebration of great importance and antiquity. ये जो कैंडी पेरेहरा की जो रस्म है, ये एक ट्रेडिशनल, एक रिलीजियस, इनकी जो एक मजहबी सेलिब्रेशन है. जिस तरह हमारी मजहबी सेलिब्रेशंस क्या होती हैं, जो हमारी ईद होती है, इस तरह इनकी कैंडी पेरेहरा ये एक इनकी ट्रेडिशनल और मजहबी जो कि रिलीजियस इनकी सेलिब्रेशन होती है, जो काफ़ी अहमियत रखती है इनके लिए. ट्रेडिशनली द किंग वॉज द गार्डियन ऑफ द सीक्रेट रेलिक and according to the ancient custom of Rajakarya, he gave land and holy shrines to the people. This gift of land was bound to specific duties. स्टार्ट में ये जो किंग है, ये इस टूथ की, इस दांत की, इस टेम्पल की रखवाली करता था. इसका गार्डियन ये किंग था. इसने काफ़ी लोगों को लैंड्स दी, ज़मीनें दी, एंड होली श्राइन्स, जो उनके मजहबी जो मज़ारात हैं, वो लोगों को गिफ्ट किए. क्या किए इन्होंने, इस गिफ्ट के एवज उनसे कुछ ड्यूटीज़ ली. उन जिन लोगों को इन्होंने, इस किंग ने लैंड और होली श्राइन्स दी, जो मज़ारात इन लोगों को दी, इन मज़ारात के बदले में उसने उनसे कुछ ड्यूटीज़ भी ली. अब आपको आगे ड्यूटीज़ का बता रहे हैं कि वन ऑफ दीज वॉज द डांसिंग, ड्रमिंग एंड टॉर्च बियरिंग ऑफ द पेरेहरा. Another duty was supplying flowers for the daily pujas or religious rites, and another was cultivating paddy fields for the daily offerings of rice at the holy shrine. फर्स्ट ड्यूटी इनमें क्या थी कि इनको डांस करना है, ड्रम्स बजाने हैं, और जो टॉर्च बियरिंग ऑफ पेरेहरा है, इसका मतलब ये जो फंक्शन होता है ये रात के टाइम में होता है और इसमें टॉर्चेस की हेल्प से रोशनी की जाती है. तो एक ड्यूटी तो इनको ये दे दी गई कि डांसिंग एंड ड्रमिंग एंड टॉर्च बियरिंग करना है आप लोगों ने. अनदर ड्यूटी वॉज सप्लाइंग फ्लावर्स
इनके जो पूजाज होते हैं या कुछ भी मजहबी इनकी जो रस्मात होती हैं उनके लिए फ्लावर्स चाहिए होते हैं, तो वो फ्लावर्स भी ये लोग इनको सप्लाई करते थे। और अब दूसरी जो ड्यूटी थी वो क्या थी कि इनके लिए जो राइस की, जो चावल की फील्ड्स होती हैं वो कल्टीवेशन करनी थी उसकी। वो पैडी फील्ड्स क्या होते हैं आपके पास, जो आपके पास राइस उगाने के लिए पहले वो जो फील्ड्स होती हैं वो वेट कर दी जाती हैं और बाद में उसमें राइस उगाई जाती हैं। तो और वो राइस उगाने के बाद जब ये फंक्शन होता है, जब ये सेलिब्रेशन होती है, तो इनमें इनको मज़ारात वगैरह में इनको ये ऑफ़र की जाती हैं, मतलब लोगों को राइस दी जाती हैं। पहले कल्टीवेशन होती है, पहले उनको कल्टीवेट करते हैं, फ्लावर्स के इंतजाम भी करते हैं ये लोग, एंड डांसिंग ड्रमिंग भी करते हैं। ये सारी सेलिब्रेशंस फिर होती हैं इस कैंडी पेरेहरा में। और ये जो राइस की ऑफरिंग होती है ये फिर होली श्राइन्स में जो मज़ारात हैं, उधर डिफरेंट मज़ारात हैं, वहाँ ये राइस तकसीम की जाती है, जो ये चावल है वो तकसीम की जाती है। द ग्रेट कैंडी पेरेहरा इज़ एन अनयूजुअल celebration which many pilgrims families travel from the surrounding rural areas to see. Nowadays tourists from all over the world also come to see it. Each summer the celebrations begins at the full moon at the time prescribed auspicious by the astrologers and continues every evening for 11 days. अब ये जो ग्रेट कैंडी पेरेहरा की जो सेलिब्रेशन है ये इसको देखने के लिए काफ़ी लोग सारी दुनिया से आते हैं, जो कि बुद्धिस्ट को मानने वाले होते हैं वो भी आते हैं इसमें शामिल होने के लिए। और आजकल कहते हैं कि टूरिस्ट भी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो टूरिस्ट हैं वो भी आते हैं इस रस्म को देखने के लिए कि इसमें क्या होता है। ओके, और ये जो रस्म होती है जो कैंडी पेरेहरा की, ये ईच समर जुलाई एंड अगस्त के महीनों में होती है, जब मून जो होता है, जो चांद होता है वो फुल होता है, इस टाइम में ये रस्म की जाती है। ओके, और ये जो रस्म है ये कितने दिन कंटिन्यू हुई होती है? 11 डेज तक ये रस्म होती है। ये सेलिब्रेशंस 11 डेज तक होती है। अब पैराग्राफ नंबर 3, In the Perehra, the blessings of the god are invoked for rain, fertility and successful crops. इस पेरेहरा के रस्म में ये लोग अपने देवताओं, इनके जो मानने वाले खुदा होते हैं, उनसे ये लोग किस चीज़ की ब्लेसिंग्स मांगते हैं कि हमारे इलाके में रेन हो, बारिश हो और जरखेज़ी हो, फर्टिलिटी मतलब जरखेज़ी हो, और हमारे जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं वो कामयाब हो, मतलब उगने में कामयाब हो वो। एज एलिफेंट्स आर अ कल्चरल सिंबल ऑफ एबेंडेंस एंड फर्टिलिटी, दे प्ले एन एसेंशियल एंड विजुअली स्टनिंग पार्ट। इनका कहना है कि जो एलिफेंट्स हैं वो एक सकाफती, इनके पास एक निशानी है फर्टिलिटी की, जरखेज़ी की और एबेंडेंस की, और ये एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं फर्टिलिटी में, मतलब इनको अच्छा माना जाता है, इनको एक अच्छी निशानी के तौर पर इस पेरेहरा में शामिल किया जाता है। 100 lavishly decorated elephants parade in the ceremonies accompanied by hordes of drummers, dancers and fair bearers. 100 एलिफेंट्स आते हैं, उनको अच्छी तरीके से लैविशली डेकोरेट किया जाता है और ये परेड करते हैं सेरेमनी में एंटर होते हैं, और इनके साथ जो लोग आ रहे होते हैं, जो हजूम आ रहा होता है, होर्ड्स आ रहे होते हैं, जो हजूम आ रहा होता है वो किस चीज़ का होता है, किन लोगों का होता है? ड्रमर्स का होता है, डांसर्स का होता है और फायर बियरर्स का होता है, मतलब जो आग जलाते हैं उसमें रोशनी के लिए, और ड्रमर्स होते हैं जो ड्रम बजाते हैं, और डांसर्स डांस करते हैं। द एलिफेंट्स frequently travel long distances to reach Kandy for the Perehra, walking slowly in night in order to avoid the heat and the traffic. जो एलिफेंट्स होते हैं वो बहुत लंबा सफ़र तय करके आते हैं कैंडी, किस चीज़ के लिए? पेरेहरा के रस्म के लिए। स्लोली आते हैं रात के टाइम में, ताकि ये हीट, गर्मी और ट्रैफिक से बच सकें। दे आर डेकोरेटेड आउटसाइड द टेम्पल ऑफ द टूथ। इनको कहाँ पे डेकोरेट किया जाता है? इनको कहाँ पे कपड़े वगैरह पहनाए जाते हैं? आउटसाइड द टेम्पल ऑफ द टूथ। टेम्पल ऑफ द टूथ का क्या नाम था? श्री दलादा मलिगावा, ये जो टेम्पल है, और इसको टेम्पल ऑफ द टूथ भी कहा जाता है। इस टेम्पल ऑफ द टूथ के बाद इस एलिफेंट्स को सजाया जाते हैं। देयर महूट्स और राइडर्स ड्रेप द एलिफेंट्स इन ब्रिलियंट कवरिंग्स सीन विद
mirrors in rich colors, exotic amber, rich vibrant red and bright, rich shades of deep blue. Almost every part of the elephant is covered in these decorative drapes until only their eyes are visible. अब जो इनके राइडर्स हैं, जो एलिफेंट्स के महूट्स मतलब जो राइडर्स हैं, उन्होंने इनको किस टाइप के कपड़े पहनाते हैं? जो बिल्कुल ब्राइट कलर के कपड़े होते हैं, जो रेड कलर के होते हैं, ब्लू जो वाइब्रेंट कलर्स हैं, उन कलर्स के इनको कपड़े पहनाए जाते हैं, जिसके ऊपर मिरर्स का काम होता है, शीशों का काम होता है। और एग्जॉटिक एम्बर, एम्बर का क्या मतलब है? एम्बर आपके पास एक स्टोन होता है येलोइश कलर का, अक्सर ये ज्वेलरी में यूज किया जाता है, येलोइश का कलर होता है इसका। तो इन कलर्स के इन एलिफेंट्स को कपड़े पहनाए जाते हैं, इनको कवर किया जाता है, यहाँ तक कि इनके सिर्फ आईज विजिबल होते हैं, इनके सिर्फ आईज दिखाई देते हैं और सारे ये डेकोरेट हो जाते हैं आउटसाइड द टेम्पल ऑफ द टूथ। आई होप आपको इधर तक समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के पैराग्राफ नंबर 4 और 5 पढ़ेंगे। Until then, take care. Allah Hafiz.